اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے پاک پتن، جہاں پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ غلام گردش جسے ہم کہتے ہیں وہ کافی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رواں دواں ہے۔ مسجد میں مدینہ منورہ کی طرز پہ چھتریاں لگانے کا پروگرام ہے، طرز پہ نہیں بلکہ وہی چھتریاں لگانے کا پروگرام ہے، اس کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ حکومت پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اس کی اپروول دے دی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ سارا کام جو ہے اور جو یہ ایکسٹینشن ہے اس کو وہ اسپانسر کر رہے ہیں مدینہ فاؤنڈیشن، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں۔ تو انشاءاللہ مل کے ہماری کوشش ہے کہ اگلے غسل مبارک سے پہلے یہ تمام کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے، اور لوگوں کی سہولت کے لیے اور دربار شریف صاحب کی مزید اس کی آرائش کے لیے اس کو رینوویشن کا کام ہے وہ مکمل ہو۔ ایسے لگتا ہے کہ کل ہی ابھی 1999 تھا، 31 مئی 1999 کو جو دربار شریف کا جو ٹوٹل ایریا ہے اس کو دوگنا جو اس وقت تھا اسے 2 گنا اور بڑا کیا گیا، یعنی 3 گنا پہ لے کر جائے گے، اور 31 مئی 1999 کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا، جو آپ آج دیکھ رہے ہیں کھلی تمام اس طرف جو ہے جی ٹی روڈ کی طرف ایکسپینشن، یہ 1999 میں مکمل ہوئی تھی اور 1997 میں شروع ہوئی تھی۔ سما حال بھی اس کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ان ہستیوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے صدقے برکتیں اور نعمتیں رحمتیں عطا کرے، پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی حکومت کو توفیق عطا کرے کہ میاں محمد شہباز شریف دن رات کوشش میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پچھلے غسل و عرس کے بعد اس دفعہ جب ہم ملے ہیں تو ایک بے پناہ کامیابی عطا کی ہے الحمدللہ۔ آپ کے ہمسایہ ملک نے جو اپنی ایک یعنی جنگ شروع کی، وہ ہواؤں میں بھی اور فضاؤں میں بھی اس کی بہت بری حالت ہوئی، اور ان کے 6 طیارے جو 6 جیٹ فائٹر جسے کہتے ہیں وہ زمین بوس ہوئے، اور اس کے علاوہ پھر زمین پہ جب انہوں نے بند نہیں کیا، شروع کیا دوبارہ، تو اگلے یعنی 36 گھنٹے میں 80 ڈرون بھیج دیے۔ اس کے نتیجے میں جو پاکستان نے ان کو سبق سکھایا 9 اور 10 کی درمیانی رات کو صبح 4 بجے، جیسے وزیر اعظم اور عسکری قیادت اور سول قیادت نے فیصلہ کیا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت احترام اور ماشاءاللہ کامیابی عطا کی ہے۔ ہم سب کو اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، وہ فخر نہیں کرنا چاہیے، سجدہ ریز ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اپنی رحمتوں برکتوں کے نتیجے اور ایسی ہستیوں کی جو ہم یہ چھوٹی چھوٹی خدمت کرتے ہیں ان کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ ساری عالم دنیا میں ہمیں کامیابی عطا کی ہے۔ اور اس وقت پاکستان کی تاریخ میں یہ بڑا ریئر مقام آتا ہے، کبھی کبھار آتا ہے کہ آج ہم 2 سال کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ممبر بھی منتخب ہو چکے ہیں، 7واں مہینہ ہے، اور اس کی صدارت اس مہینے 1 جولائی سے 1 مہینے کے لیے ہمارے حصے میں آئی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنا جو ایرانی مسلمان بھائی ہے، ہماری کامیابی کے بعد جو ان کو جو مشکلات آئیں، جو ان کے اوپر اسرائیل نے حملے کیے، اس کے بھی ہم نے بھرپور مذمت بھی کی، ان کی پوری طرح ڈپلومیٹک سفارتی طور پہ ان پر سپورٹ بھی کیا، اور ساری دنیا نے اس کو دیکھا، اور پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ریئل فرینڈ ہے، جو اصل سچا دوست ہے، وہ پاکستان ہے۔ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں بھی تشکر پاکستان کے نعرے لگائے۔ ان کے آپ نے جیسا کہ جو ان کے اوپر جو تمام اسرائیل نے بمباری کی، اس کے نتیجے میں ان کے بہت سینئر لوگ، کچھ آرمی کا چیف جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے جنازے میں بھی پاکستان کا بہت بڑا جھنڈا اور پاکستان کے حق میں نعرے لگ رہے تھے۔ یہ یعنی چیزیں آپ کو پچھلے 70-75 سال میں دکھائی کبھی نہیں دی ہوں گی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اب ہم نے جب جنگ کو بھی الحمدللہ جیت لی ہے، ہماری تو کبھی جنگ لڑنے کی یعنی خواہش ہی نہیں تھی، ہمارا ایجنڈا ہی نہیں تھا۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم سلامتی چاہتے ہیں، ہم اس خطے کی بہتری چاہتے ہیں، ہم عوام کی بہتری کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ سلامتی کے ساتھ ساتھ اقتصادی ایجنڈا ہے، جو ہم دن رات اس کے لیے کر رہے ہیں۔ کل ہی آپ نے دیکھا، میں آذربائیجان سے سیدھا حضور داتا صاحب کی اس محفل کے لیے
हाज़िर हुआ वहाँ से, और उस 1.5 दिन की हमारी जो विज़िट थी अज़रबैजान में, जो कि इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट था, यानी सरबराहान की मीटिंग थी, उसके बाद हमने अज़रबैजान के साथ $2 अरब का मुआहदा किया कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। उनकी तरफ से उनके इकॉनमी मिनिस्टर थे, मेरी तरफ से मैंने उसके ऊपर दस्तखत किए, और ये सब मैं समझता हूँ कि अल्लाह का करम है, और जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हमारे जो मसाइल थे आज से 1.5-2 साल पहले, इस हुकूमत के आने से पहले, वो आपने देखा कि महंगाई में भी बेपनाह बेहतरी हुई है। जो मुनाफे की शरह है, मैं सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो भी आधा रह गया 22% से 11%। और इसी तरह अब पूरी की पूरी कोशिश है तरक्की के लिए, तरक्की होगी, आवाम को रोज़गार के मौके मिलेंगे, आवाम की जो फ़ीका आमदनी बढ़ेगी, और इस तरह इंशाअल्लाह बेहतरी और खुशहाली मुल्क में आएगी। ये आप आपस में फैसला कर ले किसने क्या सबका जवाब दिया जा सकता है, सुना जा सकता है यार। कोई इस तरह की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, उनकी पूरी सपोर्ट है, और जो मुश्किल के साथी होते हैं वो उनको अच्छा वक्त आने पे छोड़ा नहीं जाता। ये हमारे जो कायद हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियां नवाज शरीफ साहब की हमेशा यही हमें हदायत रही है। जब हमने हुकूमत शुरू की थी तो उनके बगैर हमारा तादाद पूरी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की तादाद बिल्कुल यानी सिंपल अक्सरियत के हवाले से अब कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी का खुदा न खास्ता कोई हमारे ऊपर, हम उससे भी ज़्यादा उनसे ताउन करेंगे। और आपने देखा कि जो अपना दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो मुआहदा हुआ, और जो यानी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से साइन किया, पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने साइन किया, वो तमाम हमने उसको यानी हमारे लिए वो एक बड़ा सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, और उस पर हम पूरी दिल से पूरी तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कोई मसला नहीं होता। मैं चला जाऊँगा। जिस तरह मौसम में हवस और गर्मी है, मुल्क में बढ़ती जा रही है। मेरा ख्याल है आप चाहते हैं मैं चला जाऊँ। मियां कहा जा रहा है कि मियां साहब सियासी कशीदगी को कम करने के लिए, निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अडयाला जेल में बिल्कुल ये सारी स्पेकुलेशन है। किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉ जो कानून है वो अपना कोर्स खुद लेगा, और इसमें खुद स्पॉन्सर्ड किस्म की ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं। हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत में हमारा हिस्सा हो, चाहे वो अपोजिशन में हो। और आपने उसका देखा कि जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, हमने तमाम पार्टी सिर्फ यानी जो बेंच हैं हुकूमती जमातों के साथ नहीं, मैंने हुकूमत की तरफ से और मेरे साथियों ने अपोजिशन के साथ भी उसी तरह इंगेज किया। और आपने देखा कि उसके नतीजे में एक मुत्तहिद आवाज़ दुनिया ने सुनी, कि दुनिया पूरी ने मुत्तहिद आवाज़ सुनी पाकिस्तानियों की। ये किसी उसमें कोई फ़र्क नहीं था कि ये हुकूमती जमात की पार्टी कोई है या अपोजिशन की पार्टी है। ये एक मिसाली आपके सामने तजर्बा हुआ है। उसके बाद आपने देखा कि ईरान की हुआ जो वाक़या, उस पर भी हमारी जहाँ तक कोशिश है कि तमाम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कानून और आइन को तो हम एक तरफ नहीं रख सकते। उसका कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह की करप्शन के वाक़े सामने आ रहे हैं, आप ये समझते हैं कि इस गवर्नमेंट को घर जाना चाहिए? और दूसरा ये कि दहशतगर्दी की एक लहर आई है। देखिए, पूरी कौम ने को पता है, और आप उससे भी ज़्यादा ज़हीन हैं, जहाँ तक कानून आइन का तल्लक है वो फॉलो होगा। और अगर कोई आप कहते हैं, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आपने कह रहे करप्शन आई है तो उसका एक ड्यू प्रोसेस है, और उसको एक्सपोज होना चाहिए किसी भी जगह पे हो, सिर्फ एक सूबे में नहीं। जहाँ भी करप्शन हो उसको ख़त्म करने के लिए कानून को हरकत में आना चाहिए, और अपना उसमें जो एक्शन है वो लेना चाहिए। तहरीक साहब ये कह रही है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात वहाँ चाहते हैं जहाँ पर उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जाए या उनके पास ताकत हो। आप क्या समझते हैं, ऐसे माहौल में इनके मुज़ाकरात हो सकेंगे या जमहूरी ताकतों के साथ ही मुज़ाकरात होंगे?
देखिए पाकिस्तान के लिए जो जितना यानी मुश्किल में ये फंस चुका था 2022 तक, अब मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, वो आपके सबके सामने है। पाकिस्तान उस वक़्त डिफ़ॉल्ट के किनारे पे खड़ा था। ये मैं नहीं कह रहा, आप सब उस वक़्त यही कहते थे आज डिफ़ॉल्ट होगा, कल होगा। अगर उस वक़्त ये तब्दीली ना आती अप्रैल 2022 में, तो शायद आपको मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता, और वो कोई मुश्किल काम नहीं था। अब उसको सहारा दिया पूरी पीडीएम गवर्नमेंट ने। हमने बहुत बड़ा अपना सियासी कैपिटल को हमने नुकसान उठाया उस हुकूमत को दाखिल होने में, उसको चलाने में। लेकिन अल्लाह ताला का फजल है कि उस तमाम मेहनत का नतीजा ये है कि वो डिफ़ॉल्ट जो है वो हवा में उड़ गया, और आज अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के जो वसाइल हैं ज़र मुबादला के, वो 14.5 अरब डॉलर पे 30 जून को पहुंच चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है और बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे हैं कि अभी खतरा बाकी है, अभी खतरा टला नहीं है। खतरा तो हर वक्त ही हो सकता है ना जी, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। खतरा देखिए, आपने अलर्ट रहना है। आपने खुदा न खास्ता अगर आप पे ऊपर कोई वार करे, दो किस्म के वार हैं, एक दहशतगर्दी हो रही है, उसके लिए हम पूरी अपनी तैयारी में हैं और कोशिश करते हैं। आपने देखा कि अभी जो हमारे जो जवान शहीद हुए, और उसके नतीजे में अगले ही 48 घंटे में करीबन 30 खवारिज को जहन्नम हासिल किया गया। तो जहाँ तक ये ख़तरा जो बाकी है, क्योंकि वो उसका एक बुनियाद है, वो दोनों जो पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं, उसकी ये है कि जो सीज़ फायर थी वो तो कायम है। जहाँ जहाँ पीछे जिन दोनों मुल्कों ने जिन लाइनों पे 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में जाना था, पीस टाइम पॉइंट पे जा चुके हैं। लेकिन कुछ उनकी मजबूरी लगती है, हिंदुस्तान के जो सियासी उनके कायदीन हैं, तो वो ऐसे बयान दे देते हैं। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। जिस अल्लाह ने आगे प्रोटेक्शन की, अल्लाह के फल से बेहतरीन कामयाबी दी, और तमाम दुनिया ने देखा, और पाकिस्तान की इस वक्त उसके बाद जो दोबारा इज़्ज़त बहाल हुई, आप देखें कि अभी सिर्फ चंद दिन पहले पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं यूएई के साथ, और जो 12 साल से करीबन 2013 में हुई थी, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जो दोनों मुल्कों का बाहमी इक़्तिसादी जो कमीशन है उसकी मीटिंग नहीं हो सकी थी, वो मीटिंग हुई है। और उससे सबसे बड़ी जो उसकी आउटकम है कि इक़्तिसादी तमाम मुआहदे, दिफाई, हर चीज़। लेकिन साथ साथ 2 किस्म के पासपोर्ट पे ये हुआ है कि उस पर वीज़ा ख़त्म हो गया। ये एक छोटी न्यूज़ नहीं है, ये कोई लोग कहते हैं कि ये ख्वाब है। तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि 24 जून को मैंने और पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन मेरे उनसे मुज़ाकरात करीबन 7-8 महीने से चल रहे थे इस हवाले से, और वो सिर्फ डिप्लोमेटिक पे राज़ी थे। हमारा जो आम लोगों का वीज़ों का स्लोनेस है मसला, उसको भी उन्होंने बहुत बेहतरी की है। और मेरी ये उनसे दरख्वास्त थी कि आप हमारे जो सरकारी जो ब्लू पास उनको भी दें, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी तादाद है, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, तमाम MPs, तमाम सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो वो भी उन्होंने माना। और 24 जून को जनाब शेख अब्दुल्ला बिन जायद, जो कि उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने मेरे साथ मिल के 24 की रात को करीबन 12:30 बजे वो साइन किया, और फिर मैं वापस आया। तो अल्लाह ताला का फजल है, इंशाल्लाह आगे भी कामयाबी होगी। आपसे इंशाल्लाह उस मुबारक में बाकी बातें होगी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सैयद अली हिजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के